Hello students, myself Gurudi AD PGT Physics of the JNU Washim would like to start the new chapter of a class 9 physics, force and laws of a motion. This is the first video lecture of this force and laws of motion. In this video lecture, we are going to discuss about the force, what is the meaning of the force, types of the force, laws of the motion and law of conservation of energy. Also some numericals related to the momentum, second laws of motion and law of conservation of energy. So let us start what is the meaning of the force. Look at these pictures. अगर इसमें देखेंगे the man is pushing the car and this man is fetching the water from the well, and the girl is stopping the dog. She is pushing the dog back, and this is a wheel steering of the car which is required to rotate when car is need to be turned. Then it is rotated through this steering of the car. All these cases, ये सभी केसेस में हम देखेंगे तो यहाँ कार को पुश करने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है, या पानी खींचने के लिए कुएं से पानी खींचने के लिए भी फोर्स लगाना पड़ता है, या डॉगी को स्टॉप करने के लिए भी वो गर्ल्स फोर्स लगाती है, अपने तरफ खींचती है उसको। और यहाँ अगर डायरेक्शन ऑफ द मोशन अगर करना है तो हमें तभी भी क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। मीन्स ये अगर ये चारों केसेस देखेंगे, द फर्स्ट केस, और इसमें ये पुश कर रहा है, ये पुल कर रहा है अपने तरफ, सेकंड केस में ये भी पुल कर रही है लड़की, और ये दिस इज व्हेन कार इज नीड टू बी रोटेट, वी हैव टू रोटेट दिस स्टीयरिंग। मीन्स व्हाट इज द फोर्स समझने के पहले फोर्स क्या है, तो फोर्स किसके लिए चाहिए, पुल के लिए चाहिए, ये पुश करने के लिए चाहिए टू पुश द बॉडी, और ये टू पुल द बॉडी, पुल करना है तो चाहिए। that girl is also pulling the body, the dog, and this is for the to change the direction, to change direction. So this is the use of the force, or for that purpose force is required to push, pull or change the direction of the motion. Then come to the point, what is the force? The meaning of the force is an external effort which may move the body at the rest or stop. बॉडी को मूव करने के लिए या रेस्ट में लाने के लिए, स्टॉप द मूविंग बॉडी, और चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी, और चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी, और चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। अगर किसी बॉडी का शेप एंड साइज चेंज करना है, वी नीड द force. Means we can say this is it is an external effort, it is a needed, some external effort is needed. किसके लिए, एक तो which may be move the body from the rest to move the body, एक पहला। दूसरा किसके लिए चाहिए फोर्स, और to stop the or change the speed of the moving body, or to stop the moving body, change the speed of the body, change the speed of a body, और चेंज द डायरेक्शन को चेंज करने के लिए ये, तो ये सभी इट इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी, टू स्टॉप द मूविंग बॉडी, to change the speed of the body, या change the direction of body. For that poor purpose
external effort is required. This external effort, or this is the fifth is a change the shape in body, change shape of the body. तो ये पर्पस के लिए हमें फोर्स लगता है, और ये जो फोर्स है वो बॉडी को मूव करना है, स्टॉप करना है, चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी और डायरेक्शन को चेंज करना है, तो या शेप ऑफ द बॉडी को चेंज करना है, तो वी नीड द फोर्स. So what is the effect of the force? The force can be move the body at rest. अगर फोर्स अप्लाई करेंगे कोई, तो ये बॉडी को क्या करेगा, मूव करेगा. तो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू बॉडी to force can be move the body at rest. Force can stop the moving body. Force can change the speed of the moving body. Okay. Force can change the direction of the moving body. Force can change the shape and size of the body. This is the force. अब यहाँ देखो ये पुश कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, फोर्स कैन मूव द बॉडी एट रेस्ट. रेस्ट में जो बॉडी वो मूव करेगी. फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग बॉडी. अगर ये बॉल जोर से आ रहा है, तो ये गोलकीपर क्या रहा है, बॉल को स्टॉप कर रहा है. किससे? ही इज अप्लाइंग द फोर्स. एंड चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी. ये साइकिलिंग, द पर्सन इज अ साइकिलिंग, ये क्या कर रहा है, पैडल करके इसका स्पीड चेंज कर रहा है. फोर्स कैन बी चेंज द डायरेक्शन. अब ये क्रिकेटर जो है वो अपना बॉल उसकी तरफ आ रहा है, उसका डायरेक्शन चेंज करके उसको मार हिट करेगा, तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. और फोर्स कैन बी चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी. ये रोटी जब बनाते हैं तो पहले गोला रहता है, उसको बेलेंगे तो ये क्या होगा, एक चपाती बनेगा, सर्कल बनेगा. तो ये शेप चेंज हो रहा है. मतलब फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर द शेप 5 पर्पज. पुश, अगर बॉडी को रेस्ट मूव करना है, स्टॉप करना है, तो स्पीड को चेंज करना है, डायरेक्शन चेंज करना है, शेप चेंज करना है, तो ये 5 पर्पज के लिए फोर्स रिक्वायर्ड. सो फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इज रिक्वायर्ड, और एक्सटर्नल एफर्ट which may move the body from the rest, stop the moving body, change in the speed of the moving body, change in the direction of the, change in the shape and size of the body. This is the purpose of the force, and this known as a force. There are the two types of the forces. अगर इसमें देखेंगे तो दो टाइप के फोर्सेस हैं. एक को बोलेंगे बैलेंस फोर्स, दूसरा अनबैलेंस फोर्स. बैलेंस फोर्स किसको बोलेंगे? Force is said to be balanced when force is applied on this big stone. That person is pushing the stone. Is he able to do it? No, he will not pull the stone because it is a very big stone. So he is not able to push the stone. Means in this case, he is applying the force on in this direction. He is applying the force to the stone, and stone is also applying the force in a opposite direction, or it opposes this force equal and opposite direction, and these forces are the same, it will not move. This known as a balance force. Means the balance forces are there in opposite direction, body will not move, or force equal and opposite to the body, then motion will not take place, or this known as a balance force. Then unbalanced force, when these 4 people and these 4 persons are pulling the rope, this known as a tug of war. In a tug of war, these 4 are applying force in this direction, और ये 4 कहाँ, यहाँ डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करें. लेकिन अगर मान लो ये टीम विन हो गया, इन्होंने ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया और यहाँ चला गया, तो ये दिस नोन एज अनबैलेंस फोर्स. मतलब अगर ये टीम विन हो गया, द लेफ्ट साइड वाला, तो फोर्स इज ए अनबैलेंस. मतलब फोर्स ऑफ दिस 4 अप्लाइड, दिस इज ए सपोज F1, ये दोनों ने F2 अप्लाई किया, व्हेन F1 इज ए ग्रेटर देन F2, देन फोर्स इज सेड टू बी अनबैलेंस फोर्स. तो ये दो टाइप का फोर्स है, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स. तो मोशन तभी पॉसिबल है जब फोर्स इज ए अनबैलेंस होगा. बैलेंस फोर्स होगा तो बॉडी हमेशा रेस्ट में रहेगी,
the motion will not be takes place. अब चलो डेफिनेशन देखते हैं बैलेंस फोर्स का और अनबैलेंस फोर्स का. तो two forces acts on a body in a opposite direction. बैलेंस फोर्स क्या है? टू फोर्सेस एक्ट्स ऑन ए बॉडी इन ए ऑपोजिट डायरेक्शन. यहाँ F1 है, यहाँ F2 है. ये बोथ फोर्सेस आर इक्वल, ये दोनों इक्वल हैं. देन रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज ए 0. अगर ये यहाँ F1 फोर्स से खींच रहे हैं, यहाँ F2 फोर्स से खींच रहे हैं, तो और दोनों फोर्स अगर इक्वल है, ये दोनों फोर्स कैसे हैं? इक्वल है. then resultant force on the body is a 0. Such force is known as a balance force. Balance forces cannot be changed the state of the rest of the motion. अगर फोर्स बैलेंस है तो उसका कभी स्टेट ऑफ रेस्ट, जो रेस्ट पोजीशन है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता. मतलब किसी बॉडी का स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज करना है तो कौन सा फोर्स लगेगा? अनबैलेंस फोर्स लगेगा. चलो डेफिनेशन देखते हैं. व्हाट इज द अनबैलेंस फोर्स? If two forces acts on a body in a opposite direction, if one force is greater than other, अगर यहाँ एक फोर्स है F1, दूसरा F2 है, और F1 क्या है? ज़्यादा है, ग्रेटर है than the F2, then the resultant force is not equal to 0. Resultant force क्या है? 0 नहीं होता है. Such force is called as a unbalanced forces. Unbalanced forces change the state of rest. रेस्ट चेंज, स्टेट ऑफ रेस्ट. अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाना है तो कौन सा फोर्स चाहिए? अनबैलेंस फोर्स चाहिए. एक फोर्स ग्रेटर होना चाहिए, तभी तो ये वो ग्रेटर फोर्स के डायरेक्शन में मूव करेगा. तो बच्चे इसको अगर तुम्हें ब्लड इमेज दिखाई देता है तो उसको सेटिंग में जाकर तुम्हें उसका जो क्वालिटी है वो 360 रखना है. 360 या 480 क्वालिटी में तुम ये वीडियो देखेंगे तो तुम्हें ये इमेज सभी ब्लर्ड नहीं दिखेगा, लिखा हुआ भी क्लियर दिखाई देगा. तो ये बात का ध्यान रखो. और अपना नोटबुक में नोट्स लिखेंगे तो ये सब पॉइंट मेंशन करो. व्हाट इज द बैलेंस फोर्स, व्हाट इज द अनबैलेंस फोर्स, ये डेफिनेशन जो दिया है. आई थिंक अब अनबैलेंस फोर्स और बैलेंस फोर्स का डिफरेंस पता चला होगा. ये आसान है. अगर दो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाए किसी बॉडी पर और वो फोर्स इक्वल है तो बॉडी का रेस्ट पोजीशन चेंज नहीं हुआ था. बॉडी रिमेन एट दी रेस्ट एंड दीज टू फोर्सेस आर बैलेंस व्हेन दे आर इक्वल इन ए मैग्नीट्यूड. और दोनों इक्वल है. अनबैलेंस फोर्स होता है व्हेन टू फोर्सेस अप्लाइड ऑन द बॉडी आर अपोजिट इन डायरेक्शन एंड वन फोर्स इज ग्रेटर देन अदर. एक फोर्स क्या है? दूसरे से ज्यादा है. देन बॉडी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर फोर्स. दिस नॉन एज ए अनबैलेंस फोर्स. चलो ये बात समझ में आया. व्हाट इज द अनबैलेंस एंड बैलेंस फोर्स. देन फोर्स ऑफ ए फ्रिक्शन. व्हाट इज द फ्रिक्शन? Force of the friction is the force which opposes the motion of the object over the surface. Motion of a, अगर हम किसी, ये फुटबॉल है, इसको किक लगाएंगे तो फुटबॉल क्या करेगा? सम टाइम तक और सम टाइम तक ये रोल करेगा और बाद में क्या होगा? स्टॉप हो जाएगा. जब फोर्स का क्यों स्टॉप हो गया है? तो फ्रिक्शन की वजह से. जो सरफेस ग्राउंड का, जमीन का जो सरफेस है उसका और बॉल के बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो मोशन को क्या करता है? अपोज करता है. अगर इसीलिए थोड़ी देर के बाद वो जाके रुक जाता है. अगर फ्रिक्शन ही नहीं होता और हम एक बार बॉल को किक लगाते हैं तो बॉल कभी दोबारा रुकता ही नहीं था, वो बॉल हमारा नहीं होता था. फ्रिक्शन की वजह से हम बॉल खेल पाते हैं. अदरवाइज once we kick the ball it will go rolling and go very far, continuously it will be moving, but due to the friction it stops. The force of the, what is the friction? The force of friction is the force which opposes the motion of the object over the surface. सरफेस के ऊपर अगर बॉडी के मोशन को अपोज करता है वो फोर्स को बोलेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. एग्जाम्पल यहाँ, बॉल इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड, gradually slow down and comes to the stop due to the force of a friction. We will stop the paddling of the bicycle. It gradually slow down and come to stop due to the force of friction. यहाँ भी force of friction की वजह से अगर साइकिल पे चल रहे हैं और हमने पैडल लगाना बंद किया तो थोड़ी दूर जाने के बाद वो अपने आप रुक जाता है, क्योंकि
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके वजह से, टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन है वो। और किसी बॉडी को हम पुश कर रहे हैं तो मोशन कहाँ होता है, दिस मोशन इज इन ए फॉरवर्ड डायरेक्शन, बट डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन इज ए अपोजिट टू द मोशन। फ्रिक्शन क्या करता है, उसको अपोज करता है। तो इस तरीके से फ्रिक्शन हो गया। An object with uniform motion will continue to move with the uniform motion if force acting on it, pushing force या frictional force are balanced। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म में मोशन में जाता है, जो पुश करने वाला फोर्सेस है और एंड फ्रिक्शनल फोर्स है, forces acting on the pushing force and frictional force are balanced। पुशिंग फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स अगर बैलेंस है, कौन सा, फ्रिक्शनल फोर्स अगर ये अपोज करता है और पुशिंग फोर्स बैलेंस है, और कोई बॉडी मोशन में है तो इट विल बी इन ए यूनिफॉर्म मोशन। इफ अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, मूविंग बॉडी, देन स्पीड और डायरेक्शन चेंजेस। अगर कोई अनबैलेंस फोर्स इसमें एक्ट कर रहा है, मतलब पुशिंग फोर्स इज ग्रेटर देन द फ्रिक्शनल फोर्स, then it will be a force of friction, then it will be a speed is a increases, then speed of direction of the motion changes। अगर मोशन का स्पीड क्या होगा, चेंज होगा when this applied force F1 is greater than the frictional force। या डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो भी वो चेंज हो जाता है जब फ्रिक्शनल फोर्स या अप्लाइड फोर्स क्या है, ज़्यादा है। if the unbalanced force is removed, अगर unbalanced force जो है रिमूव किया, then it will continue to move with the speed it had acquired till then। Okay, this is the force of a friction, which is the opposite. Friction means this is a force which opposes the motion is known as a force of friction। Then this is the Galileo's experiment। From this Galileo's experiment about the motion क्या देखा, in over the inclined plane। गैलीलियो ने ऑब्जर्व किया तो ये दो इंक्लाइन प्लेन है और देयर इंक्लिन एंगल इज द सेम, ये थीटा है तो ये भी क्या रहेगा, थीटा। तो यहाँ से कोई एक बॉल छोड़ेंगे, ये हाइट एच से, तो ये इंक्लाइन प्लेन पे फिर दोबारा एच हाइट पे चला जाता है। अगर ये यहाँ इंक्लिनेशन एंगल अगर छोटा करेंगे तो ये हाइट एच से छोड़ेंगे तो ये डिस्टेंस क्या होगा, इट विल गो टू द लॉन्गर डिस्टेंस। उससे भी अगर छोटा इंक्लिनेशन एंगल और छोटा करेंगे तो अगेन इट गो टू द लॉन्गर डिस्टेंस। एंड सेम व्हेन इट इज ए, यहाँ से इसको बॉल को छोड़ दिया और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर जाएगा तो इट विल गो द लॉन्गर डिस्टेंस, वेरी लार्ज डिस्टेंस। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट ऑफ ए inclination of the inclination plane। तो हम अभी देखेंगे व्हाट इज द लॉज ऑफ ए मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ ए मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ ए न्यूटन, द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इट इज स्टेट दैट an object remain at rest or uniform motion in a straight line unless they compel change the state of a applied force। मीन्स अगर इसको और इजी शब्दों में देखेंगे, कोई बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा कब तक, जब तक कोई फोर्स इसको नहीं अप्लाई करते तब तक। और कोई बॉडीज अगर यूनिफॉर्म मोशन में or it moving in a straight line, it will remain in a straight line or it remain in the motion unless no force acts on it। दोनों का कंबाइन करके भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट remain in the state of rest or uniform motion in a straight line unless no force acts on it। so यहाँ ये बॉडी when it is a rest or motion, अगर बॉडी रेस्ट स्टेट में, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन में है और स्ट्रेट लाइन जाता है तो वो कंटिन्यू मोशन में रहेगा और रेस्ट बॉडी रेस्ट में ही रहेगा जब तक उसको कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल व्हेन बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, अगर कोई बुक टेबल के ऊपर रखा तो इट विल रिमेन ऑन द टेबल अनलेस नो बडी इज ए लिफ्ट इट और नो बडी विल बी ए टेकन इट। जब तक वो कोई लेता नहीं है तो वो हमेशा टेबल पर ही रहेगा
और कोई भी बॉडी अगर एक जगह पे है तो अपनी जगह पे रहेगा, कब तक? जब तक कोई फोर्स अप्लाई नहीं करता है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिमेन एट द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन unless no external force acts on it, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करते हैं तब तक वो अपनी जगह पे रहेगा, या कोई बॉडी मोशन में तो मोशन में रहेगा जब तक कोई फोर्स उसको अप्लाई नहीं करते तब तक। This known as Newton's first law of motion, and this first law of motion is related to the inertia. What is the inertia? Inertia is a natural tendency of an object remain state of rest or uniform motion is called as a inertia. तो जो बॉडीज है उनका एक नेचुरल टेंडेंसी होता है कि वो अगर एक जगह पे है, अगर ये कोई जगह पे, ये दिस इज द स्टोन लाइंग ऑन द अर्थ सरफेस, अगर एक जगह पे तो वो उसी जगह पे रहेगा। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया। या कोई बॉडी अगर मोशन में है तो इट विल रिमेन इन द मोशन, तो दिस आल्सो नोन एज ए inertia. This is a natural tendency of the body and natural property of body which is at rest, it will remain at rest, or motion में तो it will remain at the motion. In this way, this is why the first law of motion is known as the law of inertia. इसीलिए फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। यहाँ इनर्शिया का एक एग्जांपल रखा है, एक पोस्ट कार्ड या छोटा एक कार्ड रखा है ग्लास के ऊपर, और इसके ऊपर एक कॉइन रखा है। जब हम इस पोस्ट कार्ड को टिक करेंगे तो कॉइन का ये जो पोस्ट कार्ड को जोर से हाथ से एक टिचकी लगाएंगे तो पोस्ट कार्ड कहाँ जाएगा? आगे जाएगा। कॉइन कहाँ गिरेगा? कॉइन विल बी फॉल डाउन इन दी दिस इज द बीकर। ऐसा क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ इनर्शिया। फोर्स किसको लगाया हमने? पेपर को लगाया। तो पेपर इज इन ए मोशन बट दिस कॉइन इज एट ए रेस्ट। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए इनर्शिया। और चलो दूसरा ये देखें, एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया। अलग अलग एग्जाम्पल देखते हैं। when if striker hit the pill of the coins in the carom board, lowest coin moves out and due to inertia at rest and other coins fall down. अगर हम ऐसा कॉइन एक के ऊपर रखेंगे, यहाँ के नीचे कॉइन वाले को कॉइन से स्ट्राइकर से हिट करेंगे तो ओनली दिस कॉइन कम्स आउट, बाकी अपनी जगह पे गिर जाएंगे, क्योंकि this is the example of a inertia. All this happened because these are the rest. We hit the bottom coin, then bottom coin due to this force it will come out, but others are the remain at the rest, they will come down in this way. The next example, again this coin is a place on the playing card over the tumbler and it is a flicked with the finger, then due to the inertia of the rest, coin fall down into the tumbler. This is another example. Or when we travel in the car, driver apply the brake suddenly, then we tends to fall forward due to the inertia. अगर ड्राइवर ने सडन ब्रेक अप्लाई किया तो वो क्या होगा? हमारे पैसेंजर होगा, क्योंकि वाई दिस इज द क्वेश्चन, ये आएगा वाई में। when the driver apply the sudden brake of a fast moving car, why the passenger fall forward? Because when car is in a motion, passenger also in motion with the car. When brake applies to the car, it comes to the rest, but till the passenger in a motion, so they will move forward. This is due to the inertia. Because कोई भी बॉडी का टेंडेंसी इनर्शिया का डेफिनेशन में देखा कि कोई भी जो बॉडी उसका टेंडेंसी अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहता है जब तक कोई फोर्स अप्लाई नहीं करता। तब कार तो रुक गया क्योंकि ब्रेक की वजह से, लेकिन बॉडी मोशन में तो मोशन में ही रहना चाहता है, इसीलिए वो आदमी कहाँ गया? आगे फॉरवर्ड की तरफ चला गया। और to protect the passenger from this, the seat belts are used.
उसके लिए क्या करते हैं, सीट बेल्ट यूज करते हैं, ताकि बॉडी कार के साथ, जैसे कार रुकेगा तो सीट बेल्ट भी उसको क्या करेगा, होल्ड करेगा और कार के साथ ही उसको बांध के रखेगा, और it is body will be attached to the along with the motion of the car. When the person is standing, when we are standing in the bus and bus begins to move suddenly we tends to fall backward. जैसे ब्रेक अप्लाई करने के बाद फॉरवर्ड जाता है, जैसे रेस्ट बस अगर सडनली स्टार्ट होता है और suddenly move, then we tends to fall backward because our feet is in contact with the floor, it move forward, but upper part of the body continues to remain rest due to the inertia. और जैसे ही इसका अनदर एग्जांपल, अगर हम किसी ट्री का अगर ब्रांच हम हाथ में पकड़ते और जोर से हिलाएंगे तो सम पत्ते क्या होता है उसका नीचे गिर जाते हैं, दे आर गेट डिटैच, means when we vigorously shake the branch of the tree, some leaves get detached from that branch. It is due to the inertia. क्योंकि जब हम हिला रहे ब्रांच को तो ब्रांच को हिला रहे, लेकिन पत्ते तो भी कैसे रहेंगे, रेस्ट में रहेंगे, और ये रेस्ट में पत्ते को क्या होगा, सडन जर्क मिलता है, तो इसकी वजह से वो क्या होता है, दे विल बी ए फॉल डाउन, यहाँ नीचे गिरना शुरू करेंगे इस तरीके से। तो दूसरा भी when the foot mat is clean by beating the stick से क्या करते, फुट मैट को बीट करते हैं, तब इसका डस्ट पार्टिकल रिमूव हो जाता है। ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ द इनर्शिया। इनर्शिया एंड मास, हाउ दे आर रिलेटेड, मास एंड इनर्शिया। तो ये इनर्शिया, द ग्रेटर इनर्शिया, greater is the mass. When greater inertia or inertia is mass is this inertia is property of the mass. Greater the inertia, larger the mass, or larger mass has a greater inertia. A body is at rest or continue to the rest, or body is in a motion, continue to be in a motion. This property is called as a inertia. इसके definition हो गया. What is the inertia? Body is a continue to the state of rest or body in a continuous to be motion. This property is called as a inertia. Inertia of body is measured by the magnitude of the force required to change the state of the body. तो अगर inertia, what is the magnitude of inertia निकालना है तो हम क्या करेंगे, the magnitude of the inertia is the force required to change the state of the body. This is known as a inertia. Force is required to change the state of a heavier body is a more. अगर body heavy है तो उसको क्या करेगा, अगर heavy truck है तो it requires the more force to change the state of rest. Means heavier body needs the more force to change the state of body, means it has a greater inertia. More force is required to change the state of a lighter body as compare, दोनों की lighter body को कम force लगता है. This is because mass of the heavier body is more than the mass of the lighter body. So mass of the body measures the inertia. So this is a mass of the body measures the inertia. अगर heavy body है तो ज़्यादा force लगेगा because इसका inertia ज़्यादा है, mass ज़्यादा है. Okay, in this way. Then next is a momentum. तो आज का इसके लिए आज के क्लास के फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, हमने आज क्या क्या पढ़ा। तो हमने आज पढ़ा कि व्हाट इज द फोर्स, फॉर और वाई फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर दिस 5 पर्पज। ये पढ़ा किसके लिए, बॉडी को रेस्ट से मूव करने के लिए, बॉडी को स्टॉप करने के लिए, बॉडी को अगर स्पीड चेंज करना है तो क्या चाहिए, तो भी फोर्स चाहिए, डायरेक्शन चेंज करना है या शेप चेंज करना है तो फोर्स चाहिए। एक पढ़ा हमने, उसके बाद बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स में
इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कैसे होता है, इक्वल, एंड बॉडी रिमेन एट द स्टेट ऑफ रेस्ट, दिस नोन एज ए बैलेंस फोर्स। अनबैलेंस क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट नॉट इक्वल, two opposite forces apply on the body, one is greater than the other, then this is known as a unbalanced force। अगर unbalanced force apply करेंगे तभी state of rest change होता है, otherwise it will not change। उसके बाद पढ़ा friction। friction means this force which opposing the motion on the surface, this known as a friction। और उसके बाद हमने पढ़ा गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट फॉर द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर इंक्लाइन प्लेन पे एक कोई बॉडी छोड़ देंगे और दोनों का इंक्लाइन प्लेन का एंगल अगर सेम है तो उतना ही है, जितना हाइट से छोड़ा उतना हाइट पर चला जाता है। अगर इंक्लिनेशन एंगल छोटा है तो ये लॉन्गर डिस्टेंस जाएगा, अगर इंक्लाइन प्लेन और छोटा करेंगे एंगल उसका तो और ये लॉन्गर डिस्टेंस जाएगा। दिस इज द एक्सपेरिमेंट ऑफ ए गैलीलियो। देन लॉज ऑफ मोशन पढ़ा, कोई बॉडी इवन एनी बॉडी इज एट रेस्ट or uniform motion, it will remain in the uniform motion or state of rest unless no force applied, कौन सा force, external force applied on it, this known as first law of a motion। Then inertia, what is the inertia, it is natural tendency of the body to remain at the state of the rest or uniform motion, this called as a inertia। so greater is the mass, larger is the inertia। एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया का, ये कैरम बोर्ड का एक एग्जाम्पल देखा, पोस्ट कार्ड और कॉइन का। और व्हेन ब्रेक सडन ब्रेक अप्लाई किया तो वो जो सडन ब्रेक अप्लाई किया तो पैसेंजर का होता है पुल फॉरवर्ड होता है बिकॉज ऑफ ए इनर्शिया। और रेस्ट में बॉडी कुछ बस है और सडन स्टार्ट हो गया तो पैसेंजर फॉल बैकवर्ड बिकॉज ऑफ ए इनर्शिया। और दूसरा इनर्शिया एंड मास, हाउ दे आर रिलेटेड, larger is the inertia, greater is the mass, या larger is the mass, greater is the inertia। अगर heavy body है तो उसको larger force लगेगा to move, अगर उसको move करना है तो larger force लगेगा, और lighter body तो उसको कम force लगेगा। it is because of a inertia, means larger heavy body has a large inertia or lighter body have a small inertia। और आज के लिए बस इतना ही, आगे का पार्ट आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। और तब तक के लिए सब नोट्स बनाओ, अच्छी तरह से नोटबुक मेंटेन करो, टर्म को सीखने की कोशिश करो और अच्छी तरह से नोटबुक अपना मेंटेन करो। और आगे का वीडियो लेक्चर में आगे के बाद पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।